Hello, good morning, everyone. My name is Aditya, and today we are going to learn Mongo database. And basically, what we are doing in this video, we are learning um, Mongo shell and going to perform CRUD operation on a Mongo's database with the help of Mongo's database. So, firstly, we get to know about what is Mongo's database. What is a Mongo database? So it is a non-SQL database. Mean no, in this we are not we are not using SQL language to insert or to perform a CRUD operation on a database. And in the non-SQL database, we have in non-SQL database, the data is not stored in the form of tables, unless in MySQL or SQL relational database like MySQL, Postgre, and in non-SQL database we have MongoDB and Cassandra. These all are the uh, non-SQL databases. So we are learning how data is inserted, basic CRUD operation of Mongo database. So to do this, we need to start open our what command prompt. Okay, in command prompt, we are going. If we want to enter into our Mongoose shell, firstly we need to install it into our system. So you are going to website on the MongoDB shell and download, and then you are going to proceed. Let me show you from where you can download it. MongoDB shell documentation या shell download पे जाएंगे आप. Then on the first link, because in my system I have already installed, so I'm not going to show you how to install. Then this MIC package. Then after downloading, you got the installer, and after 2 3 step by next and you got into the MongoDB shell. So after installing MongoDB shell, you need to open your command prompt. Then you need to write. Firstly, we check we have MongoDB hyphen version. MongoDB ni MongoD. Yeah, this show that we are using version 8.0.13 and Mongoose 2.57. We need to write Mongo shell. So we are getting some such, and now we are get write CLS command clear. Okay, so now we are into our Mongo shell. So firstly, we should know what here test is. So test is a temporary database. Okay. If we want to know how many database in our MongoDB, so we're going to write show databases. Yeah. Here we have three databases: admin, configure, and local. These are by default into our MongoDB. And this test is also a also database which is a temporary. Okay. So MongoDB is internally work on JavaScript. We can see that some functions 1 + 2 3. So it behaves like a JavaScript. In this, we can perform JavaScript functions also. Like if we write to this, we are using JavaScript function. So internally, Mongo shell use JavaScript. We can see and we can perform any of the operation like that, uppercase, lowercase, trim, slice, so this slice, slim, slice, okay. Slices, slice and slice. There are two things. So we can use through this.
Now, now what we are going to do is we are performing CRUD operation. Before proceeding, we should know what type of data is stored in MongoDB. So in MongoDB, BSON type of data is stored. BSON means it is like a JSON and BSON like use think it like a sibling. So JSON में क्या होता है कि की वैल्यू पेयर होता है. बेसोन जो बेसोन है उसमें बाइनरी जेसोन है. बाइनरी जेसोन. अब देखो जेसोन में कोई लिमिटेशन थी. क्या लिमिटेशन थी कि उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ डेटा टाइप्स थे कि हम नंबर ही पुट कर सकते हैं. पर बेसोन में क्या कर सकते हैं बहुत सारे टाइप के डेटा टाइप. बहुत सारे टाइप के डेटा टाइप्स हो सकते हैं. नंबर में भी हम इंट फ्लोट ये यूज कर सकते हैं. और इधर लिमिटेड डेटा टाइप्स. इधर बहुत सारे डेटा टाइप बाइनरी डेटा टाइप डेट टाइप का डेटा टाइप भी हम MongoDB में इंस्टॉल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बेसोन. सो जेसोन जो हम डेटा देते हैं वो एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट देते हैं. और इंटरनली जो हमारा MongoDB है उसको कन्वर्ट कर देता है बीसोन में. सो बीसोन कुछ नहीं है बस एक टाइप. जिस तरह का डेटा हमारे MongoDB में इंस्टॉल हो रहा है वो बेसोन है. ओके. और यही होता है बेसोन. और लिमिटेशन यही है कि उसमें लिमिटेड डेटा हो रहा है इधर ज्यादा डेटा यू पुट कर पा रहे हैं. और हाँ दिस टू आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन जेसोन एंड बीसोन. और so now we see that the database present here show database. Now we can uh, there's something in MongoDB. There is a documents and a collection. So document you can relate with MySQL. In MySQL we have tables. Okay. Just like we are creating a database named college. Okay. So it contains number of tables, and in this table we have number of uh, rows. Okay. So these rows are in non-SQL database. It just like a mm, it's just like a document. A document is nothing but a uh, JavaScript object. Okay, JavaScript object like we JavaScript object है. और उसी को हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं. कलेक्शन ऑफ दिस डॉक्यूमेंट इज अ कलेक्शन. मतलब हम रिलेट कर सकते हैं कि जो माइस्क्यूएल है. माइस्क्यूएल में जो हमारा डेटाबेस है उसमें जो टेबल है वो हमारे नॉन एसक्यूएल जो मोंगोडीबी है उसमें जो टेबल है. तो इधर की टेबल और ये वाली टेबल दोनों एक. इधर हम उसको कलेक्शन बोलते हैं उधर टेबल बोलते हैं. इधर टेबल में रोज होते हैं और रोज और टपल्स होते हैं. और इधर जो टेबल है जो कलेक्शन है सॉरी इधर जो टेबल है नॉन एसक्यूएल में जो हमारा टेबल है कलेक्शन है उसके अंदर हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं. तो डॉक्यूमेंट कुछ नहीं होता. हमारे जेसो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ही है बस है ना. और वो फिर बाद में जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के बाद देन इट इज कन्वर्टेड इनटू बीसो. ओके. सो नाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म अ CRUD ऑपरेशन और MongoDB. सो फर्स्टली वी चेक कितने हमारे पास कलेक्शन है. देखो मैंने यूज किया शो कलेक्शंस एम्प्टी. अभी हमारे पास कोई सा कलेक्शन नहीं. कलेक्शन मतलब एक तरह से हम टेबल समझ सकते हैं. कितनी टेबल है तो अभी जीरो टेबल की हमने कुछ क्रिएट ही नहीं किया. अब हम एक डेटाबेस बना लेते. यूज कॉलेज. ये हमने एक डेटाबेस बना लिया. अभी ये टेम्परेरी डेटा है. यहाँ पे बता रहा है स्विच टू डेटाबेस कलेक्शन. ये स्विच टू डेटाबेस कलेक्शन स्विच टू डेटाबेस कॉलेज. कॉलेज नाम के डेटाबेस में आ चुके हैं. और ये जो कॉलेज है ना ये भी हमारा टेम्परेरी डेटा है क्योंकि अभी हमने इसमें कुछ इंसर्ट नहीं किया. अब हम वी नीड टू इंसर्ट इट. और हम यहाँ पे कलेक्शन देख ले सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या टेबल है. ये कॉलेज डेटाबेस है. हम इसके अंदर देख सकते हैं कौन कौन से हमारे पास टेबल्स है और कलेक्शन है. अब मैं टेबल्स ना यूज करके कलेक्शन यूज करूंगा. शो कलेक्शंस. अभी एम ये यहाँ पे स्पेस आ रही है ना मतलब खाली है, कुछ है नहीं अभी यहाँ पे कलेक्शन. अब हमें कलेक्शन बनाना है. तो पहला जो फर्स्ट कलेक्शन है मतलब पहली टेबल है वो कैसे बनेगी. हमें जब हम डेटा इंसर्ट करेंगे किसके अंदर स्टूडेंट. अब इधर स्टूडेंट क्या है. स्टूडेंट एक जो है स्टूडेंट है. ये तो डीबी हमने यूज किया है. जो स्टूडेंट है ये हमारा कलेक्शन मतलब नेम ऑफ द टेबल. तो हमारे टेबल का नाम होगा स्टूडेंट. और उसके अंदर हम वैल्यू करेंगे इंसर्ट वन. वैल्यू कितनी वैल्यू. अब देखो यहाँ पे वन कैमल केस में होगा. आई आई छोटा और वन बड़ा. तो डेटाबेस में हम गए कलेक्शन के अंदर इंसर्ट की वैल्यू इंसर्ट वन में एक वैल्यू इंसर्ट करनी है. ठीक है.
अभी हम किस टाइप का डेटा देंगे, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, तो हमने यहाँ पे दे दिया नेम। सो नेम हम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मैंने इसका नाम दे दिया एडम। ओके, तो एडम के पास हमारे उसकी एज होगी, एडम की एज दे देते हैं हम 12 दे दो, कोई नहीं। फिर मार्क्स दे दो एडम को, मार्क्स होंगे उसके 75, 475। और सीटी दे दो एडम को, सीटी दे दी हमने दिल्ली। सो इस तरह हमने हमारा डेटा बेस में डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, ये की जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हम सेंड करेंगे। हम सेंड तो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ही कर रहे हैं, क्योंकि की वैल्यू पेयर है। पर ये जो इंसर्ट होगा वो बीसॉन टाइप में हो जाएगा। देखो कैसे पता चला, स्टूडेंट इंसर्ट वन इज नॉट अ फंक्शन। ओके, इंसर्ट की स्पेलिंग गलत लिखी है हमने, इंसर्ट RT। ये देखिए यहाँ पे एक्नॉलेज टू, और ये आईडी जनरेट होगी, ये प्राइमरी की और हमारा, ये प्राइमरी की है और एक आईडी जनरेट हुई। अब हमें देखना है, हमने ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया कि हमने एक डेटा पुट कर दिया, हमें देखना है कि हमारा डेटा पुट हुआ है कि नहीं। तो हमारा डेटा कैसा दिखता है, डॉट फाइंड सिस्टम डेटा। CRUD ऑपरेशन में जो सी मतलब क्रिएट करना, तो हमने इंसर्ट करना मतलब क्रिएट करना सीख लिया। आर मतलब रीड करना, तो हमने रीड करना, ये देखो। तो हमने एडम नाम का एक की थी, एडम नाम की वैल्यू थी, की नाम का ऑब्जेक्ट है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये हमने इसमें कर दिया। अब इसको क्लियर करके, अब if you want to insert multiple data, okay, insert many data, many. So how we are going to insert many data? We are going, अब देखो, हम एरेज में यदि सिंगल डेटा है तो ऐसे इंसर्ट करेंगे, और जब हम पोर्ट के फॉर्म में जब माइस्क्यूएल में डेटा इंसर्ट करते हैं तो प्लेस होल्डर क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। चलो छोड़ो वो सब, माइस्क्यूएल नहीं पढ़ रहे, मोंगोडीबी पढ़ रहे हैं। इसमें मल्टीपल डेटा जो हम सेंड करेंगे वो अरेज ऑफ डॉक्यूमेंट के फॉर्म में सेंड करेंगे। अरेज ऑफ डॉक्यूमेंट मतलब पहले हम एक अरे बनाएंगे, ये अरे बन गया। अब इसके अंदर हम बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देंगे, ये हमारे डॉक्यूमेंट्स है। देखो ये जो है ना हमारा स्टूडेंट, ये कलेक्शन है, और ये जो अंदर है ये हमारा डॉक्यूमेंट है दोनों। हम यहाँ पे लिखेंगे नेम। अब हम नाम दे देते हैं, नाम दे देंगे बॉब। ओके, फिर हम बॉब की एज। अब जो हमारा माई एसक्यूएल डेटा टाइप है, और माई एसक्यूएल डेटा बेस है, सॉरी डेटा टाइप नहीं, डेटा बेस है, उसमें हमें स्कीमा डिफाइन करना पड़ता है। मतलब हमें नंबर ऑफ कॉलम्स और स्कीमा डिजाइन करनी पड़ती है कि इतने कॉलम्स होंगे, इसकी वैल्यू नल हो सकती है, और ये सब इसके अंदर नहीं होता। इसमें हम वैल्यूज को कम ज्यादा कर सकते हैं। और मैंने पहले उधर एज वैल्यू दी हुई है पहले वाले डेटाबेस में, अब इधर मैं चाहूँ तो एज ना देते हो, डायरेक्ट मार्क्स दे दो। तो मैंने इसके मार्क्स दे दिए, 95 दे दिए। उसके अंदर मैंने सिटी दी थी, सिटी इस बार मैंने दे दी मुंबई। अब मेरे को मल्टीपल डेटा पुट करना है, तो ये जो नेम से स्टार्ट हुआ है हमारा, यहाँ से नेम से लेकर मुंबई तक, ये एक डॉक्यूमेंट हो गया। और ये अरे ऑफ डॉक्यूमेंट है, अरे ऑफ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये अरे के अंदर बना हुआ है। ये देखो, ये अरे के अंदर, अब इसके अंदर हम एक कोड जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट हम बना लेंगे। फिर वो जब हम सबमिट करेंगे तो उसके अंदर इंटरनली MongoDB उसको कन्वर्ट कर देगा बीसॉन में, ठीक है। बिजों की खास बात एक और ये है कि जो जेसोन डेटा वो ह्यूमन भी रीड कर सकता है, मशीन भी रीड कर सकते हैं, पर जो बेसोन डेटा है वो ओनली रीडेबल बाय मशीन। तो हम उसको लिख, हम रीड ही नहीं कर सकते, तो रीड ही नहीं कर सकते, लिख भी नहीं पाएंगे। ओनली मशीन, बेसोन डेटा ओनली मशीन कर सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे जेसोन टाइप का डेटा दिया। ऑल्दो मोंगोडीबी में बेसोन टाइप का, बीसोन टाइप का, मतलब बाइनरी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा स्टोर होता है, पर फिर भी हमने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट टाइप का ही डेटा क्यों दिया, बेस्ड ऑन टाइप का डेटा, क्योंकि बेस्ड ऑन टाइप का डेटा हम लिख ही नहीं सकते ना समझ सकते, वो तो मशीन करती है, तो इसलिए वो इंटरनली मोंगोडीबी करेगा। हमें यहाँ पे जावास्क्रिप्ट डेटा ही देना है, वो तो हमने समझने के लिए। और यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो एक कलेक्शन मतलब टेबल समझ सकते हैं,
तो उसके बाद ये जो है ये हमारा डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट मतलब एक रो क्रिएट हो गई, रो के अंदर ये सारा डेटा गया। ठीक है, तो ये रो है, मतलब टपल एक तरह से नॉन स्क्वेयर से कंपेयर करें तो। अब हमने यहाँ नेम के बाद में, नेम हमने इसको दे दिया केसी। ठीक है, अब हम इसके भी मार्क्स दे देते हैं। मार्क्स, इसको मार्क्स आए 45। और फिर हमने सीटी दे दी। सिटी कौन सी थी हमने, वो सूरत। सूरत। ओके। और एक और मल्टीपल डेटा हम क्रिएट करना चाहते हैं, इसलिए हमने एक और डेटा ले लिया, इसमें नेम दे दिया ट्रम्प। ट्रम्प नाम का एक हमारे पास स्टूडेंट है, जिसके मार्क्स हैं 69। और सिटी है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे किस टाइप पहले से इंसर, अब हम इसको एंटर करते हैं। समथिंग वेंट रॉन्ग, यहाँ पे हमें न्यूयॉर्क के बाद में ये कुछ एरर है, वापस इनपुट करके देखते हैं या क्या है। हम्म। ओके, हमने डेटा में इंसर्ट में नहीं नेम दे दिया बॉब, मार्क्स सिटी 95, नेम केसी, मार्क्स 45 स्टूडेंट। 2 सेकेंड ना, वेट फॉर अ मिनट। क्लियर कर दिया इसको, कुछ एरर हो रहा है मेरे को। इंसर्ट मैंने हमने यहाँ पे, ओके, एरर था यहाँ पे। एरर था, हमने इसको फिर ये इसको यहाँ पैरेंथेसिस को बंद करना था। नो, अनएक्सपेक्टेड टोकन। कहीं पे हमने कुछ नेम केसी मार्क सूरत, नेम फ्रॉम सिटी न्यूयॉर्क। अच्छा, ये भी एरर हो सकता है, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। वेट फॉर अ मिनट, वेट फॉर मिनट। मल्टीपल डेटा हम इंसर्ट कर रहे, कुछ एरर आया था, अब होगा हमारा डेटा कुछ इंटरनल एरर था। अब हमारे 3 डेटा हमने पुट करे, अब हम चेक करना चाहते हैं कि हमारे पास कितना क्या डेटा है। तो हम लिखेंगे डीबी मतलब डेटाबेस स्टूडेंट, मतलब यहाँ पे कलेक्शन है स्टूडेंट डॉट इंसर्ट, सॉरी फाइंड, वी नीड टू फाइंड। ओके, नाउ आई कैन सी हियर 4 datas are there: Adam, Bob, Casey, Surat, sorry, Casey and Ram. And the I did not need to. I can change the schema also. Not need to define a schema unless we are doing in MySQL. मैंने यहाँ पे नेम एज मार्क्स सिटी दिया, यहाँ पे एज नहीं दी, यहाँ पे एज नहीं दी, मतलब मेरा स्कीमा डिफरेंट चेंज हो रहा है। तो हमने यहाँ से क्या सीखा, हमने डेटाबेस में इंसर्ट करना सीखा, फाइंड करना सीखा। अब मुझे बहुत सारी चीजें फाइंड करनी है, ऐसे थोड़ी ना कि ये देखो मुझे डेटाबेस में फाइंड करना है कि जहां मेरे मार्क्स मार्क्स कितने हो। मार्क्स या सीटी देखते पहले। सीटी, सीटी की वैल्यू हो दिल्ली के बराबर। ऐसे कितने रिकॉर्ड्स है मेरे पास,
आई ओनली वन रिकॉर्ड, एंड मैं चेक कर लेता हूँ, वन ही रिकॉर्ड है ना मेरे पास। दिल्ली मुंबई सूरत सारा डेटा अलग अलग है। अब मुझे चेक करना है कि मेरे पास 75 या 69 से ज्यादा मार्क्स किन किन बच्चों को, वो फाइंड करना है। मतलब हमने पहले क्या क्या किया, इंसर्ट करना सीख लिया, अब हम फाइंड करना सीख रहे हैं, रीड करना सीख रहे हैं। तो पहले हमने क्रिएट मतलब करंट ऑपरेशन में क्रिएट मतलब इंसर्ट करना सीखा, अब हम रीड कर रहे हैं ना। रीड मतलब फाइंड कर रहे हैं, तो हमने पहले तो सारा डेटा फाइंड कर लिया। अब हमने एक क्वेरी लगाई, सीटी जो दिल्ली वही पहले पहले तो उसने सारा फाइंड डॉट फाइंड करके डाला, तो सारा डेटा दी थी। अब मेरे को स्पेशल जिसकी सीटी दिल्ली वो चाहिए, तो उसने मेरे को सिर्फ ये दिया जिसकी सीटी दिल्ली वो एक है, एडम, ऐसा सा। और वन फाइंड वन डाला तो उसने सारा मेरे को डेटा दे दी। फाइंड डाला तो सॉरी है, ओके। अब मुझे देना है जिसकी एज, जिसके मार्क्स 45 से 69 से ज्यादा, उन सबका डेटा चाहिए मुझे, ओके। तो मैं लिखूंगा डेटाबेस डॉट स्टूडेंट फाइंड, फाइंड क्या फाइंड करना है मेरे को, मार्क्स। अब मार्क्स लिखे मैंने। अब इसके अंदर हमें एक कंडीशन लिखा है, जिसके मार्क्स 69 से ज्यादा है ना, 69 से ज्यादा है। तो हमें यहाँ पे एक कंडीशन, जैसे हम उसमें लगे सिलेक्ट मार्क्स ग्रेटर देन 69, ऐसा कुछ लिखते थे। अब इसमें ऐसा नहीं लिखेंगे मतलब हमें वो कंडीशन बतानी कि मार्क्स 69 से ज्यादा, तो उसको हम लिखने के लिए हम यूज करेंगे क्वेरी ऑपरेटर्स का। तो हमने अब लिखा ये डॉलर साइन लिखा, फिर मार्क्स ग्रेटर देन, जीटी मीन्स ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर, 69 से, ग्रेटर देन और इक्वल टू, या जी टी ई लिखेंगे। इसके मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 69 है, वो सारा मेरे को डेटा चाहिए ना। वैसे मेरे पास तीन जने हैं, 75 जिसके मार्क्स है, 95 69, ये तीन जने हैं। पर मुझे तो सिर्फ एक ही देना चाहिए जिसके ग्रेटर देन 69 हो, एक ही बंदा दो जिसके ग्रेटर देन 69 हो, जो आपको पहले मिला हो, वन। तो ये एडम जिसका 75 है, जो मैंने पहले डेटा किया था, उसी को इससे वन से मतलब क्या हुआ पता है, उसने एक ही डेटा दिया जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 69 हो, और ओनली वन डेटा। सो दिस आई गॉट दिस वन। ऑल जब मैंने ये वाली क्वेरी लिखी थी, ये वाली, तो इससे मेरे पास पूरा इतना सारा डेटा आ गया था, पर फाइंड वन से वो ग्रेटर देन 69 होनी चाहिए, पर एक ही चाहिए, तो मेरे को ये आ गया। अब यू गॉट अ क्वेश्चन दैट देयर कि कुछ डिफरेंस है क्या फाइंड और फाइंड वन में, तो हाँ, फाइंड और फाइंड वन में डिफरेंस है। पहले फाइंड तो पूरा डेटा दे देता है, फाइंड वन सिंगल डेटा दे रहा है। जो फाइंड है ना, उसमें आप देख पाओगे एरे आ रहा है, यहाँ पे एरे, ये एरे दिख रहा है ना, ये एरे के अंदर है। एरे के अंदर मतलब यहाँ पे लूपिंग पॉसिबल है, यार लूपिंग इज नॉट पॉसिबल। और ये जो डेटा है ना, ये तो एक्चुअल डेटा है। ये जो डेटा है ना, इसने जो वन ने रिटर्न किया है, ये एक्चुअल डेटा रिटर्न किया। और ये जो डेटा रिटर्न हो रहा है, ये रिटर्न रेफरेंस, व्हाट, ये एक्चुअल डेटा नहीं, ये रेफरेंस है। मतलब जो हमारा ओरिजिनल डेटा है उसका ये रेफरेंस है, जो हमें वन ने दिया। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फाइंड एंड फाइंड वन। हमने यहाँ पे क्वेरी ऑपरेटर को पढ़ लिया, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा, इंसर्ट करना पढ़ा, रीड मतलब अब हम अपडेट और डिलीट पढ़ना जा रहे हैं। अपडेट, अपडेट में हमारे पास तीन कमांड होती है। कैसे, डेटाबेस में हम स्टूडेंट में गए, स्टूडेंट, और हमको अपडेट, अपडेट वन, एक को अपडेट करना है। तो हमें पहले अपडेट वन, तो हमें यहाँ पे फिल्टर लगाना पड़ेगा कि क्या अपडेट करना है। तो हमने बोल दिया जिसके मार्क्स, जिसके मार्क्स 95 हो, जिसके मार्क्स 95 हो, उसकी लोकेशन चेंज कर दो, उसकी सिटी को कर दो। हम यहाँ पे डॉलर का साइन लगाएंगे, सेट। क्या सेट करना है उसके लिए, उसके लिए हमें सेट करना है, उसके लिए क्या सेट कर सकते हैं हम, सेट सिटी, उसको हम न्यूयॉर्क भेज देते हैं। जिसके मार्क्स 95 है उसको हम भेज देते हैं अ, गोवा, गोवा भेज देते हैं उसको, गोवा भेज दिया हमने, गोवा, ठीक है। ये हमारी कमांड है। क्या हुआ, मैच काउंट वन, एक काउंट हुआ, उसमें कुछ चेंजेस आया कि नहीं वो देखते। तो हम क्या लिखेंगे, डेटाबेस फाइंड करना हमें। तो स्टूडेंट टेबल में, स्टूडेंट कलेक्शन में
फाइंड ऑल, सबको देख लेते हैं हम। देखो जिसके मार्क्स 95 है, ये गोवा चला गया, पहले ये और कहीं था पर अब उसको गोवा भेजते हैं। मतलब हमने इस पे अपडेट भी कर लिया, एक को डेटा किया जिसका 95 मार्क्स है उसको। अब मेरे मल्टीपल डेटा आ रहे हैं, जैसे मान लो तो मेरे को मल्टीपल चीजों को अपडेट करना है। अपडेट वन नहीं, अपडेट में नहीं, अपडेट में नहीं। जब मैंने इंसर्ट में नहीं किया था ऐसा, अपडेट में नहीं। मैंने मैंने बोला जिसके भी मार्क्स या जिसके भी मार्क्स या जिसकी भी सीटी दिल्ली के बराबर हो, जिसकी भी सीटी दिल्ली के बराबर हो, उसकी सीटी को सेट कर दो। दिल्ली वाले की सीटी को सेट कर दो, सीटी टू, क्या कर दो उसके सीटी को, उसको सीटी को कर दो न्यू दिल्ली। उसकी सीटी को न्यू दिल्ली कर दो। एक ही मॉडिफाइड हुआ, देखते हैं। सिटी दिल्ली एक ही था क्या हमारे पास, फाइंड। तो इसकी सिटी न्यू दिल्ली हुई, एक ही था हमारे पास जिसकी सिटी, मतलब यदि हमारे पास, ये इससे भी लिख सकते हैं जिसकी भी एज या जिसके भी मार्क्स 45 से ग्रेटर हो, जिसके भी मार्क्स 45 से ग्रेटर हो, 45 नहीं, जिसके मार्क्स 69 से ग्रेटर हो, उन सबको, उनके सबकी सिटी को कर दो न्यू। सिटी, ये यहाँ पे क्वेरी में हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जिनके मार्क्स जिनके मार्क्स ग्रेटर हो, किससे, मार्क्स ग्रेटर हो किससे, मार्क्स ग्रेटर देन 69, हाँ 69 करके। सिंटेक्स एरर, हाँ क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे दो आ रहा है, कुछ एरर है। इसको क्लियर कर लेते हैं। अपडेट हमको करना है मैंने, जिसमें हमने लिखा जिसके मार्क्स हो, ये मार्क्स की हमारी, जिसके मार्क्स हो ग्रेटर देन 69, जिसके मार्क्स ग्रेटर हो 69 से। तो ऐसे दो टेबल मैच काउंट दो हुआ, मॉडिफाइड काउंट एक हुआ, मतलब दो मैच हुआ एक काउंट में, देखते क्या होगा। मैंने अगर जिसकी 69 से था उसको न्यू दिल्ली कर दो। 69 से ग्रेटर, तो 69 से ग्रेटर एक ये था, इसको न्यू दिल्ली कर दिया, एक न्यू दिल्ली हुआ। ग्रेटर देन इक्वल टू लिखते हैं, तो ये भी न्यू दिल्ली हो जाता, मतलब ट्रक को भी न्यू दिल्ली में भेज सकते थे। ग्रेटर देन इक्वल टू फाइंड करेंगे, तो ये सब न्यू दिल्ली में आ गया, ठीक है। हमने CRUD ऑप्शन क्रिएट रीड कर लिया, अपडेट कर लिया, अब हमारी लास्ट बची डिलीट। तो डेटाबेस को डिलीट करने के डेटाबेस, फिर स्टूडेंट डॉट डिलीट वन, एक को डिलीट करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा जो भी हमें जिसके सीटी जिसकी सीटी। अब एक और ऑपरेटर हम पढ़ सकते हैं कि जैसे कि ये वाला ऑपरेटर, जिसकी सीटी ये लिस्ट में ना हो, नॉट इन लिस्ट। एक और ऑपरेटर है नॉट इन लिस्ट। सो नॉट इन लिस्ट मतलब क्या, जिस इस लिस्ट में ना हो उसको, जैसे मान लो मैंने नॉट इन लिस्ट दिल्ली, न्यू दिल्ली था ना हमारे पास, न्यू दिल्ली में ना हो, न्यू दिल्ली
और हम दे सकते हैं मुंबई। मुंबई जो इस लिस्ट में ना हो उसकी सिटी को नॉट इन लिस्ट। ये हम गलत क्वेरी लिख रहे हैं, सही हुआ। डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं नॉट इन लिस्ट की तो सिटी हो सूरत। हाँ ये केस सेंसिटिव है, हमने उधर सूरत में ऐसा लिखा हुआ। वो सिटी सूरत में। डिलीट वन इज नॉट अ फंक्शन। वन हमने स्मॉल लिखा, उसको कैपिटल आना। अब डी डॉट स्टूडेंट डॉट डिलीट वन इज नॉट अ फंक्शन। Why this was there? डिलीट का नॉट अ फंक्शन। मैं दो चेक कर लेता हूँ। डिलीट की स्पेलिंग नॉट अ फंक्शन, ये तो फंक्शन है। क्या टाइप है रहा? डेटाबेस डॉट स्टूडेंट डॉट डिलीट वन इज नॉट अ फंक्शन। नहीं हो जाएगा ऐसा। इसको हम लिखेंगे डेटाबेस डॉट स्टूडेंट डॉट। मैंने भी चेक किया तो हो जाएगा ऐसे। तो डिलीट की स्पेलिंग हम तो डिलीट वन। यहाँ पे हमारा फिल्टर लगा देंगे कि जिसकी सीटी जरूरत हो। डिलीट वन इज नॉट अ फंक्शन। डिलीट वन नहीं होता तो डिलीट मैनी भी होता है हमारे पास। डिलीट मैनी, डिलीट मैनी और डिलीट मैनी इज ऑल्सो नॉट अ फंक्शन। ठीक है थोड़ा मैं चेक कर लेता हूँ। हम यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पे जा सकते हैं इसकी। मोंगो डीबी शेड या फिर मोंगो डीबी रिसोर्सेस। रिसोर्सेज में था। मैं बस चेक कर लेते हैं हमारा डेटाबेस में क्या क्या है। डेटाबेस में ये सब चीजें हम लिख सकते हैं। डेटाबेस डॉट स्टूडेंट। अब यहाँ पे हम जो करते हैं शो कल स्टूडेंट नाम का कलेक्शन है वो। उसके अंदर डेटा भी हमने चेक कर लिया अभी फाइंड करके। ये सर हमारे पास डेटा है जिसमें सूरत की वैल्यू सबको डिलीट करना है जिनकी वैल्यू 69 से ज्यादा है, वो लिख सकते हैं। एक फंक्शन डिलीट, पहले तो हम अपडेट करना सीख लिया ना हमने। अपडेट कर लिया, अब हम उसको डिलीट करते हैं। डेटाबेस डॉट डॉट डिलीट। मुझे भी आता नहीं, मैं भी लर्निंग फेज में हूँ बट आता नहीं मतलब। यस आई रेड इट, बट कभी कुछ चीजें मैं भूल जाता हूँ। जैसे ये चीज भूल गया, डिलीट वन कैसे हो रहा था। डिलीट
हो रहा था वैसे तो, ऐसे ही होता है। मैंने शायद कुछ गलत किया है यहाँ पे, सीटी वो। हाँ 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 हाँ, सूरत केवल केस में खुद बोल रहा था, मैंने खुद ने वही दिक्कत करी, मुझे समझ में आ गया। आई मेक द, ये देखो मैंने उधर ही केवल केस और इनमें कुछ दिक्कत थी, अब देखना हाँ। वो जिसकी सूरत थी वो हट होगी। अब जिसमें भी न्यू दिल्ली उन सबको हटा दो। न्यू दिल्ली नहीं, जिनकी भी ये मार्क्स ग्रेटर देन 75 है, ग्रेटर इक्वल टू, उनको हटाओ अभी। डिलीट मैनी, डिलीट मैनी। ओके, जिसका भी मार्क्स, जिसके भी मार्क्स यहाँ को, ये हमने यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर लगाया, जिसके मार्क्स ग्रेटर देन हो, इसके 69 के, ग्रेटर इक्वल टू 75, इन सबको डिलीट कर दो। तो दो रोज अफेक्ट हुई है, वो दो रोज कौन सी होगी, एक ये वाली और एक ये वाली, ये दो गायब हो जानी चाहिए, हम देखते हैं। ये दो गायब होगी, एक ही बची है हमारे पास, है ना। अब हमें पूरा डेटाबेस को मतलब डिलीट करना, एक को डिलीट करना, दो को डिलीट करना, वो भी हम सीख गए। अब हम पूरे को भी डेटाबेस को डिलीट कर सकते हैं, बट एक उससे पहले इंसर्ट जब हमने किया था, अपडेट जब किया था, तो हमने एक भी अपडेट कर दिया, तो दो भी अपडेट किए थे ना। हाँ, इंसर्ट भी कर लिया था हमने, एक और दो। अब तो पहले 2 सेकंड ना, 2 सेकंड। अभी हमें रिप्लेस करके भी चीज होती है क्या, रिप्लेस, मेरे को याद आई थी रिप्लेस नाम की चीज। ये देखो, हमने अपडेट में एक चीज नहीं करी थी, रिप्लेस नाम की। अब ये जो ट्रम्प नाम का व्यक्ति है, इसको ट्रम्प की जो ट्रम्प में मुझे और कुछ ऐड करना है, ठीक है, ये देख अपडेट में ये, और इसी आईडी पे होगा। कैसे करेंगे हम, देखो डेटाबेस डॉट स्टूडेंट कलेक्शन, हम लिखेंगे रिप्लेस वन। रिप्लेस में हम क्या लिखेंगे, जिसका नाम, नाम ट्रम्प हो, जिसका नाम ट्रम्प, जिसका नाम ट्रम्प हो। उसमें और क्या चीज रिप्लेस करनी है हमें, उसमें हमें सेट कर देना, सेट नहीं रिप्लेस ही करना है, तो रिप्लेस में तो मतलब हम जो भी ऐड करना चाहेंगे उसके मार्क्स को हम कर देंगे 100, फिर नेम को कर देंगे हम, क्या नेम कर देते हैं, और एलन मस्क, एलन मस्क, एलन मस्क कर देंगे। बस ये चीज हम देखना चाहते हैं, हम वापस फाइंड करेंगे। तो देखो वही आईडी है, ये 6B31905833B331AF7, वही मतलब 35186, सेम आईडी पे पर रिप्लेस हो गया। अब ट्रम्प की जगह एलन मस्क। ठीक है, हम रिप्लेस भी कर सकते हैं, मतलब अपडेट में एक चीज भूल गया था, हमने डिलीट करना सीख लिया, रिप्लेस करना सीख लिया, फाइंड करना सीख लिया। हम आखिरी में ड्रॉप करना चाहते हैं, मतलब हम डेटाबेस को, डेटाबेस ड्रॉप, फिर लिख देंगे डेटाबेस ड्रॉप इज नॉट डिफाइंड, तो डेटाबेस डॉट ड्रॉप, पहले डॉट ड्रॉप डॉट डेटाबेस। ओके, हम इसके वजह से डेटाबेस को ड्रॉप कर सकते हैं, पर किसी भी डेटाबेस को ड्रॉप करने से पहले उसको एम्प्टी कर दो, मतलब उसकी वैल्यू को सारी खाली कर दो, मतलब सब वैल्यू को डिलीट कर दो। तो डिलीट करने के लिए क्या करते हैं हम, हमें पता है डिलीट मैनी कैसे करते हैं, वही चीज करने जा रहे हैं हम, डिलीट मैनी का, डिलीट मैनी करेंगे हम। डिलीट मैनी में हम कोई कंडीशन ना देते हुए सिंपल इस चीज को लिखेंगे, when it is not a function, तो हम लिखेंगे डेटाबेस स्टूडेंट डॉट डेली,
अच्छा, डेटाबेस में डीबी आता है ना। डेटाबेस डिलीट मैनी कैपिटल स्मॉल कैमल केस में यूज करना था, वो हमेशा भूल जाता हूँ। डिलीट मैनी डेटाबेस कौन सा स्टूडेंट, डेटाबेस स्टूडेंट डॉट डिलीट मैनी ये है। और हमारा डेटाबेस हो गया खाली। अभी यदि मैं आपको लिखूँ शो कलेक्शंस स्टूडेंट तो आएगा, पर ये खाली हो चुका। अब इसके अंदर फाइंड करके देखो ना तो कुछ भी नहीं आएगा। कुछ भी नहीं था, खाली हो चुका पूरी तरह से ना। बस अब हमने डेटाबेस को ड्रॉप करना है, तो हम लिखेंगे कमांड ड्रॉप डॉट ड्रॉप डॉट डेटाबेस। ये हमारी कमांड इधर हमने डिलीट करने के लिए देख रहे थे, तो इधर रिसोर्स पे आ गए। सर्वर एट लास्ट डॉक्यूमेंटेशन, उसमें हम सर्वर डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन में आ गए हम। जो क्रड ऑपरेशन, क्रड ऑपरेशन में रिमूव देखना है ना। रिमूव मेथड डीबी डॉट कलेक्शन डॉट डिलीट मैनी वन, ये मैंने पढ़ा दिया आपको। ये चीजें यहाँ पे भी से आप रेफर कर सकते इफ यू नॉट गेट समथिंग। पर मुझे नहीं लगता आप इसके बाद किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी। मोंगोडीबी शेल में है इन्वर्ट डेटाबेस का नाम, इन्वेंट मतलब टेबल का नाम, कलेक्शन डॉट इंसर्ट मैनी, तो इस तरह इंसर्ट हो जाएगा। डिलीट मैनी, तो डिलीट मैनी, अब इसमें पूरा डेटाबेस डिलीट हो गया। फील्ड और वैल्यू की जरूरत है यहाँ पे डिलीट करने से पहले। सेम चीज है। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट यू free feel to ask me in a comment section. Okay, so how to drop? You have to drop for documentation. Drop database. एडिशनल मेथड पे जाके देखते हैं। यहाँ पे करंट वर्जन बता रहा है आपको, यूज कर डेटाबेस। हाँ, मैंने बहुत सारे मेथड हो सकती है, ऐसा नहीं किया, पर हाँ बहुत सारे हो सकते हैं। ड्रॉप डेटा बेस, ड्रॉप इज नॉट अ फंक्शन। क्या, ड्रॉप इज नॉट डिफाइंड। डी आर ओ ड्रॉप डेटा बेसिस, drop dot database is not a function. db dot drop database is not function. db dot drop database कॉलेज। अब हमारा डेटाबेस ड्रॉप हो गया, मतलब अब हमारे पास, अब यदि हम यहाँ पे लिखेंगे शो डेटाबेसेस, डेटाबेस, तो हम यहाँ पे हमारा अभी कॉलेज आ रहा है। अभी ड्रॉप डेटाबेस में हमने कॉलेज को नहीं किया। ड्रॉप ड्रॉप डेटाबेस ड्रॉप कॉलेज, कॉलेज डेटाबेस का नाम कॉलेज ड्रॉप ड्रॉप डेटा डीबी ड्रॉप
is draw database. हाँ, अब मुझे समझा कमांड गलत थी। डेव draw database। अब डेटाबेस शो डेटाबेसेस। अब हमारा कॉलेज नहीं आ रहा। ठीक है, समझ लिया। अब हमने पूरा CRUD ऑपरेशन समझ लिया है। अब आप इसके बाद और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। यदि इफ यू आर डूइंग द MERN stack डेवलपमेंट, इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू टू नो अबाउट व्हाट इज CRUD ऑपरेशन इन देयर। ओके, थैंक यू।